This conference will now be recorded. Okay, so in previous class of our AVD, we have already discussed about multiple things. Just give me 1 minute. Okay, first of all, let me show you the VNet that we created. We created one VNet, virtual network, responsible to manage our private network for AVD environment, right? Uh-huh. This is the VNet panel, the VNet that we created with name of AVD VNet, I think. Yes, This is sir. the VNet that we created. Yes, sir. And then we attach one domain controller. Let me turn on. This is the domain controller and test 0 is the virtual machine that available in our AVD host pool. So need to turn on both the computer, domain controller responsible to manage the Active Directory domain services and the test user which is applicable for the AVD host pool, the AVD host pool that we decided. And the same users that we created in our Active Directory we synchronize with Azure AD. This is the Microsoft Intra ID, and AWS user is the part of our on-premises AD Tata and Telnet. जहाँ पे भी Yes, sir. on premises yes दिखाई पड़ रहा है which are correlated to the on premises, or you can consider it as the users that we created in our uh, the virtual machines, because we are trying to Okay. set up our AVD environment using IaaS service, which is considered as a infrastructure as a services, right? सर वन क्वेश्चन है अभी अपन ऑन प्रेमिसेस में यूजर्स को क्रिएट कर रहे वो यूजर्स को क्रिएट करने में क्या बोलेंगे कुछ लाइसेंसिंग वगैरह कुछ चाहिए सर बिकॉज हमारे खाली सेट ऑफ 30 यूजर्स है हम मैंने यूजर्स को बढ़ाएंगे बोले कि नहीं इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव बोल के बोल रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा सर No, you are talking about that we are creating in case of what we can say that in case of our Azure virtual machine are on premises. ऑन प्रेमिसेस में सर बोले तो एआईडीएस सर्वर में अपन परसों मैंने आरडीपी लिया था ना सर मैंने Mm-hmm. उधर यूजर्स 30 यूजर्स क्रिएट करे सो है Okay, so make sure कि वो AVD की environment पे ही कॉन्फ़िगर किया गया है, वन सेकंड सर आई एम चेकिंग because I think वो RDS पे कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे. आरडीएस हाँ, RDS Remote Desktop Services. ओके And RDS is a correlated to the terminal services. RDS जो part है ना वो terminal services है. इधर तो ऑन प्रेमिसेस नो ही दिखा रहा है सर No, 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 no. It's a part of AVT, means you are trying to access with the help of client.avt something करके आपने access किया था. यस सर यस सर Okay, so yes, maybe कि they added some additional task, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि cost calculation और profile containers create your own image, ये इन्होंने template recently add किए हैं, पहले ये options नहीं थे, 2-3 options थे but ये calculation वगैरह वाला part नहीं था. So in case of calculation part, we'll discuss about the how we can calculate the value of our AVD host pool या फिर जो यूजर से रिलेटेड चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. बट आई एम नॉट श्योर कि पर यूजर हमें कॉस्ट देनी होती है, बिकॉज वी हैव टू पे द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू डिसाइडेड, द वर्चुअल मशीन दैट यू डिसाइडेड. क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल, all the parts are included in the sense I'm talking about कि जब आप आवरली बेसिस पे पेमेंट करते हैं या फिर मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं, सो दैट टाइम द हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पार्ट्स आर इंक्लूडेड. मतलब सॉफ्टवेयर की लाइसेंस भी केस में चाहिए सर हाँ लाइसेंस भी लाइसेंस इंक्लूड है, राइट. एंड यू हैव टू पे ओनली इन केस ऑफ जब आप BYOD यूज करते हैं. BYOD मीन ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, जब आप इस्तेमाल करते हैं देन इट इज कमिंग टू द पिक्चर.
Okay. ओके, सो आई डोंट थिंक यूजर का कोई सेपरेट चार्ज होगा। BIOT ना सर आप बोले? हाँ, BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस। Okay. So it will not charge you because whenever we purchase the virtual machine, whenever we buy the computer, any virtual machine from the portal, it is included all the things. Anyway, Okay. so let's proceed to start our task and definitely we'll work over our costing. जो कॉस्टिंग का पार्ट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट वी डिड इन our environment. So we establish our Azure VNet and lots of things are included in case of Azure VNet. Then we establish our domain which is ADDS on server 2016, and then we synchronize it with Microsoft Intra ID, and after that AVD host pool come into the picture, right? So I'm Yes going sir. to start from the AVD host pool because स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को ले चलेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एवीडी होस्ट पूल में क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, देन विल डिस्कस अबाउट एडीडीएस जीपीओ वगैरह का पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द कंप्लीट व्हाट वी कैन से दैट कंप्लीट सेटअप जो है इनको इंक्लूड करके हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। डन? Yes yes, sir. Okay, okay. So fine. So now you good with the entire options that we completed. Like VNet हमारा clear है, ATDS का part clear है कि how we can install the Active Directory domain services and synchronize the user with Microsoft Entra ID, and last AVD host pool. तो ये सभी पार्ट हम ऑलरेडी मीन्स यू गुड विद दैट, बट इसके अंदर की जो Yes sir. चीजें उनको हमें देखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द होस्ट पूल। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द base of our host pool, why it is important and why we need to create it. So about the theoretical part of base pool, the pool, host pool. So what do you think about the host pool, AVD host pool? How we can describe about the AVD host pool? Uh, it Any can be idea? accessed by usually one mission can be accessed by one user, but in the host pool it can be accessed by multiple users. But the access of our user, multiple user at a same time provided by the operating system that we establish based on multi-session. Okay. Wherever we set up our AVD host pool, वहाँ तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट रहता है कि वर्चुअल मशीन के अंदर आपने अगर सिलेक्शन कर रखा है, लाइक यू सेलेक्टेड आवर मल्टी सेशन, देन इट विल गिव अस ऑप्शन टू कनेक्ट मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। Okay. ठीक है। AVD host pool is basically, the AVD host pool is a kind of backend host that give us option to create multiple virtual machine. It's a type of backend. You can consider it as a backend hardware. The high configuration hardware managed by the provider, and it will provide us an option to connect multiple virtual machine, create multiple virtual machines. Clear? Is a backend hardware and managed by? Managed by the provider like Azure. Clear? Okay. Okay. And next आप And कुछ बोले sir? huh. Backend hardware in the sense a high configuration hardware established by the Azure, and by using the same hardware means host pool can help us to create
virtual machines. And in the virtual machine, the type of operating system that we establish, the type of operating system in the sense like as a multi-session based operating system that you establish can help us to connect with multiple user at a same time. एक ही VM में हम जो multiple users को assign करते हैं access करने के लिए, which is managed by the Azure, managed by the multi-session. Done? ओके सर। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवीडी होस्ट पूल. मल्टीपल टाइप्स ऑफ एवीडी होस्ट पूल अवेलेबल. सो एंड उनका जो कॉन्सेप्ट होता है ना कॉन्फ़िगर करने का, वो भी थोड़ा सा हटके रहता है. एवीडी होस्ट पूल में अभी हम बात करने वाले हैं, एक तो होगा पर्सनल एंड द सेकेंड वन इज शेयर्ड, राइट? नॉट शेयर्ड, यस सर। विच इज कंसिडर्ड एज ए पूल्ड. पूल्ड वन, यस सर। एक पर्सनल होगा और दूसरा पूल्ड होगा. So as per the name suggests, the meaning of personal, it means that आप जितने भी यूजर असाइन करेंगे ना, you can say that you want to share dedicated VM. You want to share per user dedicated machine. जो भी VM ओके। आप सेटअप करेंगे ना, हर एक यूजर के लिए इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन होगा. ठीक है, सो इसका मतलब है एक मिशन में एक ही बंदा लॉग इन होगा, इट कैन नॉट बी अ हाँ, मल्टीपल यूजर। करेक्ट. फॉर पर यूजर, डेडिकेटेड machine for per user. And in this case, you always try to set up your AVD host pool using golden image. ठीक है ना? अभी हमने जो AVD host pool setup किया ना, which is correlated to the you can say that pooled. अभी जो हमने AVD host pool बनाया है, वो pooled का selection करके बनाया है. But जी in सर। case of personal, whenever we set up our virtual machine, our AVD host pool using personal, उस केस में हर एक बंदे के पास अपनी खुद की separate virtual machine होगी. And जी सर। you have option to decide the configuration for each and every user. I'm giving you the live example कि personal का benefit क्या है. Let me complete the gap between both the types of host pool that we have. In case of pooled as per the name suggests, which is uh, not dedicated, you can consider it as a shared host pool or shared virtual machine, which is जी also सर। categorized in two different part. होस्ट पूल भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट ब्रेथ वन इज, हाँ, ब्रीथ फर्स्ट, एंड डेप्थ। and the another was depth first. So you can consider it, these two different options are considered as a kind of load balancer. Let's try to understand about the usage of these two different point. अगर आप ब्रीथ फर्स्ट में जाते हैं तो इस केस में क्या होता है ना, जो आप वर्चुअल मशीन डिसाइड करते हो, राइट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा. ठीक ओके। है, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा. ओके। इट मीन्स दैट आपने अपने पूल्ड के केस में पहले तो सिलेक्शन किसका किया, पहले आपने सिलेक्शन किया अपने पूल्ड का. इट मीन्स दैट आप शेयर्ड होस्ट चाहते हैं, आप शेयर्ड वर्चुअल मशीन चाहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 4 5 6 7 आपने क्या किया, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन डिसाइड कर रखा है पहले से कि नंबर ऑफ VM आपने डिसाइड कर लिया 7. ठीक है, नंबर ऑफ VM आपने डिसाइड कर लिया कि 7 डिफरेंट वर्चुअल मशीन आई वांटेड टू क्रिएट, और इन 7 डिफरेंट वर्चुअल मशीन को हम एक्सेस करेंगे फ्रॉम 20 यूजर्स. ओके। गॉट इट? टोटल यस सर। नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 7 हैं और नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, 20th यूजर है. 20 यूजर्स 20 हैं। यूजर से आप इनका एक्सेस करना चाहते हैं. यू वांट टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन बाय यूजिंग फ्रॉम 20 different users. Now you know very well about each and every user are responsible to perform their own task. Some user responsible to manage the service related to Photoshop, PageMaker, CorelDRAW, like that. Some user responsible to set up their own application, right?
a different task they need to perform by self. कुछ का यूसेज बहुत ज्यादा है, कुछ का यूसेज बहुत कम है, लाइक दैट. सो इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू द बर्डन, अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन योर होस्ट पूल, क्योंकि इसमें कोई भी यूजर को क्लियर नहीं रहेगा कि हमें किस मशीन से आरडीपी मिल रहा है या हमारी मशीन पे कितना ज्यादा बर्डन पड़ रहा है. So according to the load on your infrastructure, you can start your journey to take the RDP from machine 1. और अगर इसका यूसेज, सीपीयू यूसेज 90% प्लस गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बार इस मशीन को भी एक्टिवेट कर देगा. फिर दोनों का अगर यूसेज 90% गया, फिर तीसरी मशीन एक्टिवेट हो जाएगी. एज इट इज चौथी मशीन, पांचवी मशीन, छठी मशीन, सातवीं मशीन, अकॉर्डिंग टू द यूसेज. ये हमारे सीपीयू यूसेज के अकॉर्डिंग हमारी वर्चुअल मशीन को ऐड करना स्टार्ट कर देता है. Okay. You have already decided, I wanted to set up my AVD host pool with the help of 7 different virtual machine, but according to the usage आपको 7 की रिक्वायरमेंट नहीं थी. कभी 2 बंदे आरडीपी ले रहे हैं, कभी 4 बंदे आरडीपी ले रहे हैं, कभी 5 बंदे आरडीपी ले रहे हैं. सो इजली 2 से 3 मशीनें इन आरडीपी को हैंडल कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द टास्क लाइक ब्राउजिंग, डेटा एंट्री, काइंड ऑफ छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे थे. दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे सीपीयू या रैम का यूटिलाइजेशन बढ़े. Right, they are Right, sir. using the basic software, but when they start using a high configuration based software, right, then again definitely उसका impact हमारे CPU पे जाएगा. It will impact to our processor. So in case of CPU usage, जैसे ही इसका CPU usage बढ़ेगा, it नेक्स्ट will VM स्टार्ट हो जाएगा, exactly ये machines को क्या करेगा, ट्रिगर देके ऐड इट कर विल. ऐड करना स्टार्ट कर देगा. ओके Any doubt, सर. any question? सर अभी फॉर एग्जांपल वी आर फॉर एग्जांपल हमारे को ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट आएगा. ओके उसमें ना दे विल मेंशन सेट ऑफ यूजर्स. फॉर एग्जांपल दे सेज 10 यूजर्स. सो व्हाट वी विल Okay. डू इज व्हाइल क्रिएटिंग अ होस्ट पूल सेशन को कितना यूजर्स बोल के वी विल पुट इन नंबर्स ना सर ब्रेथ फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद. Correct. तो हम लोग है ना एक मिशन को 5 यूजर सेलेक्ट करेंगे. सो विल दैट बी एनी इम्पैक्ट ऑफ स्लो डाउन ऑफ द मिशन और ऐसा कुछ नंबर है, इट शुड बी ओनली 3 रहे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, 5 रहे तो थोड़ा कम रहेगा, ऐसा कुछ है सर? बिकॉज वी Actually, ओनली गिव. हाँ okay. सर. The performance is not based on the number of users that you are adding. हाँ The performance always based on the type of work that performed by the user. ओके. आप जब सेशन डिसाइड करते हैं ना, जब आप सेशन डिसाइड करते हैं, इट विल नॉट इम्पैक्ट टू द परफॉर्मेंस. बेसिकली द मीनिंग ऑफ सेशन जब आप डिसाइड करते हैं, वहां पे कोई यूजर्स नहीं रहता. तब आप नंबर ऑफ सेशन डिसाइड कर लेते हैं कि आई वांटेड टू यूज दिस मशीन थ्रू 10 यूजर एट अ सेम टाइम, तो आपको वहां पे 10 सेशन डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ सो ओके. आपने 10 आरडीपी भी एक्सेस कर ली, तभी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि उन मशीन्स के थ्रू, उन यूजर के थ्रू आप कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. Specific task in the sense like as a some user are using high configuration based application, some user are using their own database, SQL कोई यूज कर रहा है, कोई वेब सर्विसेज IIS यूज कर रहा है, कोई LAMP यूज कर रहा है, कोई XAMPP यूज कर रहा है. So in this case it will impact to the entire infrastructure. राइट सर. मतलब Clear? हमारा ट्रेनिंग है सर, इट विल बी अ डेडिकेटेड सेम. हमेशा हम लोग ट्रेनिंग एनवायरनमेंट देंगे, वही एप्लीकेशन यूज करेंगे. हमारा जो भी 5-6 एप्लीकेशन है वही हाँ यूज करेंगे. बट थोड़े ट्रेनिंग में दे नॉट फेस एनी चैलेंजेस. थोड़े एनवायरनमेंट्स में जैसे मेरा हैंग हो जा रहा है या नहीं तो कंप्लीट डेड स्लो हो जा रहा है, बार बार को रिस्टार्ट हो रहा है बोल के दे विल कम अप विद got द it got it चैलेंजेस. got it.
So for this particular task, what you need to do, you need to examine a single machine by using the entire application that required for training. Okay. आप एक मशीन को कनेक्ट कराओ उस मशीन उस पर्टिकुलर एवीडी होस्ट पूल से सारे एप्लीकेशन आप टर्न ऑन करो एंड यू नीड टू मॉनिटर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड रैम। आई एम नॉट सेइंग कि Uh-huh. आप सभी मशीनें टर्न ऑन करो, एक इंडिविजुअल मशीन टर्न ऑन करो एंड यू नीड टू मॉनिटर द यूसेज ऑफ सीपीयू। बट 10%, एक 20%, ही बंदा को आ रहा 15%। है, एक ही बंदा को सॉरी, आ रहा है सर, किसी भी नहीं। द ओनली चैलेंज इज गेटिंग फॉर ओनली वन यूजर, नॉट द ऑल द यूजर्स आर गेटिंग इट। exactly, दैट that the hardware that you have already consumed with other. So it means that everything is okay. You have to change the configuration of our virtual machine that you decided for AVD host pool. Na? सॉरी सर। Got it what I'm saying? नहीं नहीं Like नहीं, एक बार। you created a virtual machine for 5 different users, right? राइट You सर, created राइट VM, सर। hostful VM for 5 different users. Everything is okay. चार बंदे अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, एक बंदे के साथ प्रॉब्लम आ रही है। Is that correct? जी सर, जी सर। Right. So in this case, what you need to do, आप अगर चार बंदे यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पांचवा बंदा जैसे आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है किसी एक के साथ। ऐसा हाँ सर, हाँ है सर। ना? बस चार पे सही चलता है, पांचवे जैसे ऐड करता है यूजर जो है आरडीपी एक्सेस करता है तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ सर। हाँ, एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट कि द हार्डवेयर दैट यू आर यूजिंग इन द बैक एंड इट इज को रिलेटेड टू द the hardware that you are using which are not supported to the application that you want to perform, नॉट right? सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड मतलब सर? And not supported in the sense hardware not enough to use the applications. सो देयर इज नो स्पेस, यू मीन टू से, इन द हार्डवेयर? नॉट स्पेस, रैम एंड प्रोसेसर। हार्डवेयर हार्ड डिस्क तो हम इमीडिएटली बढ़ा देंगे, हार्ड डिस्क का तो कोई पंगा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ हाँ। सीपीयू और रैम के इश्यूज चल रहे हैं कि आपके जो थ्रेड्स है ना सीपीयू के, वो हाँ। इनफ नहीं है टू मैनेज द सर्विसेज। ओके, उसको बढ़ा नहीं सकते सर अपन? वी उसको कैन डू चेंज नहीं दैट, कर? we can do anytime, we can do anytime, no need to delete hostful। इस क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं अभी, नो वरी अबाउट इट। यहाँ पे हम आज ओके वही सर। डिस्कस करने वाले हैं, हाउ वी कैन मैनेज इट। लेट्स कंप्लीट द पूल टाइप्स ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, राइट? ओके सर, ओके सर। नाउ, so in case of breathe first क्या होता है? In case of breathe first, it will add the virtual machines that we have already created according to the usage, right? अकॉर्डिंग टू द यूसेज, ये हमारे होस्ट पूल के यूसेज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चीजों को चेंज करता रहेगा। हाँ नाउ सर। बट इन केस ऑफ डेप्थ फर्स्ट, इट विल फुल्ली बेस्ड ऑन द पैरेलल वीएम सेटअप। कितने नंबर ऑफ वीएम्स हमने डिसाइड किए थे? 7 डिफरेंट वीएम डिसाइड किए थे, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, और ये सभी वीएम एक तरीके से क्लस्टर पे रहेंगी। ओके। इट मीन्स दैट क्लस्टर पे रहने का मतलब है कि पैरेलली आपका एक बंदा आरडीपी लेता है, ठीक है? आरडीपी फ्रॉम यूजर 1 और आरडीपी फ्रॉम यूजर 2 और आरडीपी फ्रॉम यूजर 3। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें सभी मशीनें मिलकर काम करेंगी, सभी मशीनें मिलकर आपको आरडीपी का असाइन करेंगे, आरडीपी को असाइन करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, आरडीपी आपका तभी, सॉरी, मशीन्स आपकी तभी पिक्चर में आएगी जब आपका यूसेज बढ़ेगा, जब आपके सीपीयू का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। सो विच वन uh, विल बी द बेस्ट? ब्रेथ फर्स्ट बेस्ट है या डेप्थ फर्स्ट बेस्ट है? both, I think in case of if you have a enough usage, if you are using a lot, like as you are using multiple virtual machine at the same time, then always proceed with the depth first, because in this case it will give you the access of entire virtual machines at the same time. So you always proceed with breathe first, sorry, depth first, if you want to access it, if you want to access multiple user at the same time.
क्लियर? मल्टीपल यूजर एट सेम टाइम, मगर इसमें भी ना सर, डेप्थ फर्स्ट में ब्रेथ फर्स्ट में भी मल्टीपल यूजर सेम टाइम लॉग इन होंगे ना सर? मतलब है, समझो, इफ आई स्केड्यूल टू मिशंस। No, 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 no. Login and usage both are different to each other. यस सर। Login and usage both are different to each other. सिर्फ यस सर। लॉगिन करना, सिर्फ आरडीपी लेना इज अ सेपरेट पार्ट। जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, कि एज वी डिस्कस्ड बिफोर, लाइक एज कि यूजर वन ने क्या किया, यूजर हाँ वन सर। जस्ट टेक द आरडीपी, यूजर वन आरडीपी का एक्सेस किया, और यूजर हाँ टू सर। ने आरडीपी के एक्सेस करने के साथ साथ इसने फोटोशॉप भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इमीडिएटली इसने फोटोशॉप को ओपन कर दिया, तो डेफिनेटली फोटोशॉप, कोरलड्रा, पेज मेकर, ये सभी बहुत सारे एप्लीकेशंस का बहुत सारे मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट? राइट so सर। so the user taking the rdp from user, it's not a part. The optimization is based on the according to the usage. नहीं सर, uh, मेरा मेरा क्वेश्चन इधर है कि सर, अभी फॉर एग्जांपल ब्रेथ फर्स्ट में अपन 2 मिशंस को लॉग इन करें एंड वी सेटअप 10 यूजर्स, लेट्स अज्यूम एटलीस्ट 5 और 6 यूजर्स। अभी जो भी okay. फर्स्ट लॉग इन सेशन वन hmm. में जाएगा, थोड़े जने सेशन सेशन होस्ट वन में जाएंगे, थोड़े जने सेशन होस्ट टू में जाएंगे। Hmm. राइट सर? ऐसा कुछ नहीं पहले ही पूरा 5 फिल होने के बाद सेशन टू में आएगा? नहीं नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं, सेशन का मतलब ही यूजर है ना यहाँ पे तो। हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी अपन वीएम्स क्रिएट करेंगे सर, होस्ट पुल में अपन को बन जाएंगे, सेशन होस्ट बन जाएगा, है ना सर? हाँ हाँ। सेशन होस्ट में बन जाने के बाद अभी यूजर्स लॉग इन कर रहे, एंड इट्स नॉट हम्म। दैट एक ही बार पूरा सेशन होस्ट वन में जाएगा। इट इट कैन बी स्वैप्ड। यूजर्स वन में जा सकते, टू में जा सकते, थ्री में जा सकते, कैसे तो भी जा सकते। इट विल बी शफल्ड ना सर? हाँ, इफ यू नॉट नॉट सेशन वर्चुअल मशीन में जा सकते हैं। हाँ सर, वही तो, वर्चुअल मशीन में जा सकते हैं। हाँ, तो वर्चुअल कभी भी, हाँ, किसी में भी जा सकते हैं। इसी में भी जा सकते हैं। सो एक बार, अब मेरे को एक बार ऑर्गेनाइजर बनाते सर, एक बार आई शेयर माय स्क्रीन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन माय व्हाट आई एम थिंकिंग, so that you will understand better and explain me more better. Okay, give me a minute. Let me make you presenter. Yes sir. Yeah, now you are presenter. Yes sir. So you can see my screen sir. Yes, now. So sir, ये मिशन एप्सन बोल के जो होस्ट पुल है, okay sir, ठीक है। this is the हम्म। this is the epson host pool, the avd which I have created. Out of that there are 14 users, ऐसा कुछ है बोल के, that we have created 3 virtual missions. okay sir, ओके। इसमें यूजर्स जो लॉग इन हुए, देखो अब हम्म। इसमें 2 बंदे लॉग इन हुए, इसमें 2 बंदे लॉग इन हुए, इसमें 2 बंदे लॉग इन हुए। राइट सर? यू कैन करेक्ट सी हियर। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ऐसे ही एक ही बार लॉग इन होने के बाद पूरा 5 बंदे एक ही बार एक ही जगह लॉग इन हुए बोल के, है ना सर? ठीक है, करेक्ट। 5 होने के बाद इट इज गोइंग टू द सेकंड वर्चुअल मिशन। इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। इट मे गो टू एनी ऑफ द वर्चुअल मिशन आउट ऑफ इन दिस 3, it route to any of the virtual mission. Getting my point sir? यस। कंफ्यूज कर दे रहा हूँ आपको। 10 एक बार बंदे फिर ने से रिपीट करो। लॉग हम्म 10 बंदे लॉग इन है, 10 बंदे हम्म में लॉग इन कर रहे एक ही बार, तो पूरा 5, फर्स्ट 5 इज नॉट होस्टिंग इन द फर्स्ट सेशन होस्ट, इधर ही नहीं हो रहे। दो 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 करके ये डिवाइड हो गए।
डिवाइड हो गया, तो इसमें हम्म डिवाइड हो गया तो यूसेज अपन को किधर बढ़ेगा? किसका मिशन का हार्ड डिस्क रहा पूरा अलग अलग रहेगा ना सर, या नहीं तो पूरा को मिला के एक ही हार्ड डिस्क रहेगा? अगर ये शेयर्ड है, अगर ये दिस इज द शेयर्ड शेयर्ड है, वन, हाँ, pooled sir, this is the अग, pooled one sir, हाँ, you can see अग, here अगर, pooled and the हाँ, breakfast. ठीक है। So pooled जब and आप breakfast. पूल्ड बनाते हैं, ब्रीथ फर्स्ट बनाते हैं, और इस केस में, इस केस में क्या होता है कि जब आप नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स डिसाइड करते हैं, सो इट गिव यू Uh-huh. बाय डिफॉल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव अस अ सेम, जो जो सेम हार्डवेयर आपने डिसाइड किया ना, वही हार्डवेयर आपके जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन है सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। अच्छा, तो मिशन का नहीं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन द वर्चुअल मिशन, हम्म इसमें फॉर एग्जांपल ये थे, इसका मिशन का हार्ड डिस्क अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ऐसा नहीं सबका अलग रहेगा है, सर? सब, तीनों को हाँ, मिला कर सबका मिला के नहीं एक ही नहीं रहेगा हार्ड डिस्क? नहीं नहीं नहीं, सबका अलग रहेगा। हर एक वर्चुअल मशीन अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना रैम, प्रोसेसर कंटेन करके रखे। यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर थ्री डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स, राइट सर, गॉट इट। राइट। अब इसमें क्या हाँ है, जब अब आप अकॉर्डिंग टू द यूसेज आप नंबर ऑफ यूजर बढ़ा रहे हो। अभी तक अपने 6 यूजर से कनेक्ट कर रखा है, राइट, दो दो करके हाँ ये सर, 3 मशीनों को डिवाइड कर दिया। अब आप 6 जी की सर, जगह पे 12 12 यूजर ऐड करना चाहते हैं, राइट। हाँ तो 15 एक 15। मशीन जो है, 12 या 15 जो भी है, तो एक मशीन को 4 डिफरेंट यूजर को हैंडल करना पड़ता है, पड़ जाएगा, हाँ हाँ, जी सर, राइट। सो राइट इस सर। केस में क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन, जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूजर वो चीजों को डिवाइड कर देती है। हाँ हाँ, आपको स्क्रीन क्लियर? शेयर कर सकते हो? हाँ सर। ठीक है। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट किसका हुआ। तो जब आप ट्रेनिंग वाला इन्वायरमेंट सेटअप करते हो ना, तो उस केस में यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपकी कौन सी वर्चुअल मशीन कितने नंबर ऑफ सेशन को कनेक्ट करके रखा है। कितने नंबर ऑफ जी सेशन को कनेक्ट करने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ 5 और यूजर्स आपकी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। इज दैट जी करेक्ट? सर, यस सर। ठीक है। तो इस हाँ केस में ब्रीथ फर्स्ट में क्या होगा, सॉरी, यस, इन केस ऑफ द ब्रीथ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ वर्चुअल मशीन, अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ सेशन, ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो अपने बैकएंड में क्रिएट कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करता रहेगा, किसी एक पे बर्डन आना नहीं देगा। लेकिन जो डेप्थ फर्स्ट होता है, ये एक तरीके का क्लस्टर बनाता है, सारी वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ करता है, और आपको कोशिश करता है कि हर एक का कंबाइंड करके आपको ये आरडीपी को सफल करता रहता है। अच्छा, अच्छा, तो समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल ओके, सो आई लेट मी टेल यू दिस सर, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो अभी हम्म इसमें ब्रेथ फर्स्ट में जिसका उसका रैम रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, इसको हम्म मर्ज नहीं करने देगी। इसमें फॉर ये एग्जांपल छः छः यूजर, 6 मिशन है, 6 मिशन में 3 बंदे या 4 बंदे या 5 बंदे लॉग इन हुए। ओके, दो दो हम्म सिस्टम ना खाली बैठे हुए, इसमें रैम हम्म ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ से ले लेके इसमें मिला देके इट विल गिव यू द परफॉर्मेंस बेस्ट, राइट सर? करेक्ट। अच्छा, ओके, इन दैट केस डेथ फर्स्ट विल बी बेस्ट ना सर, परफॉर्मेंस हाँ, के इश्यू के लिए? एग्जैक्टली इस केस में जो यूसेज ऑफ हार्डवेयर है ना, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से होता है कि किसी भी तरीके से कस्टमर को प्रॉब्लम ना आने पाए। ओके, बट मेक ओके, श्योर जो यूसेज है ना, वो आपके हार्डवेयर से कम ही होना चाहिए, हार्डवेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ओके, कि हमने यस सर। हार्डवेयर कम लगाया है और यूसेज हमारा बहुत ज्यादा है, सो अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अगर हमारा ऑप्टिमाइजेशन कम है, अगर हमारा ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा है और हमारे पास हार्डवेयर कम है, तो डेफिनेटली ना वो तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? ना सर, सो दैट इज द वन ओनली, ओके। राइट सर? ब्रेथ फर्स्ट में किसका वीएम का उसका ही 5 यूजर का परफॉर्मेंस देंगे,
मगर डेप्थ हाँ, फर्स्ट में आने के बाद सबका मिला के परफॉर्मेंस देंगे। राइट। गॉट इट सर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गैप बिटवीन डेडिकेटेड यानी पर्सनल पूल और पर्सनल एंड पूल के बीच में ये गैप हुआ। नाउ again question means why we need to proceed with what we can say that why we need to proceed with personal. Do you have idea about the पर्सनल आपने usage of समझा है, personal? जिसका उसको डेडिकेटेड मिशंस रहेगा बोल के बोले सर। इट विल नॉट, हाँ, अभी ठीक है। इसमें पूल्ड में है ये आज हम्म। अभी मैं एक लॉग मिशन में लॉग इन हुआ, इट विल राउट टू द सेशन होस्ट 1 वीएम 1 में जाएगा, फिर दूसरे बार लॉग इन हुआ है तो इट विल गो टू द सेशन होस्ट 2 में वीएम 2 में जाएगा। इट विल नॉट डेडिकेटेड टू द दैट पर्टिकुलर मिशंस। Okay, करेक्ट सर, इन cool. द But पूल्ड वन। ठीक है, but I wanted to know about the real use cases means एक example जिसमें हम real use cases दे सकें कि this is the actual reason or to set up a personal. नहीं सर। ठीक है, no problem. In case of using the usage of personal when we have a multiple types of user, think about you have multiple types of user and you are responsible to perform the task with multiple means you created your host pool for different user for different purpose. जी सर। ठीक है ना? हाँ जब सर। आप जब आप let's take an example personal के केस में you decided to create up to 20 VMs. आपने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे 20 मशीनें क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली 20 यूजर्स भी होंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम 20 हाँ यूजर्स you want to provide 5 user with high configuration machine. सब सब पर्सनल में जिसका मिशन उसका ही रहेगा ना सर। हाँ जी, और इसमें आपने क्या किया 5 यूजर को हाई कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। 15 सिस्टम ऐसे हैं जिसको आपने डिसाइड किया है आई वांटेड टू गिव 4 कोर CPU and 8 gig of RAM. यस सर। ठीक है, और 5 यस ऐसी सर। मशीनें हैं जिसको आपने दिया है 8 कोर CPU 16 gig of RAM. जी सर। ठीक है, so in यस this सर। case you always proceed in this case you always proceed to set up your AVD environment by using the option of personal or dedicated. इस केस में क्या करेंगे आप डेडिकेटेड का इस्तेमाल करेंगे और अपने इन्वायरमेंट में कभी भी किसी भी हार्डवेयर को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। ओके। ठीक है, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट आपका उस केस में भी हो सकता है मीन्स दूसरे केस इन द सेंस लाइक एज द पूल्ड केस जो आप पूल्ड बनाए हैं उस केस में भी मैनेज हो सकता है हार्डवेयर चेंजेस, बट उसमें डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। डिपेंडेंसी इन द सेंस कि नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके। क्लियर? सो डेडिकेटेड के केस में यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सो यू ऑलवेज प्रोसीड विद द पर्सनल। डन यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, सर कैन वी प्रोसीड फॉर तो नेक्स्ट? या सर a while configuring while setuping environment only we can put 5 missions into an 8 core and 15 minutes in 15 VMs into 4 core सर। सेटअप करते के टाइम पे ही कर सकते हैं नहीं या नहीं नहीं तो नहीं बाद। नहीं नहीं नहीं, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर इन्वायरमेंट आप केवल एक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे कि ठीक है हम अभी
4 कोर सीपीयू एंड 8 गीगा ऑफ रैम पे सेटअप बना लेते हैं। इन फ्यूचर अभी हम जैसे ही हमारा एवीडी होस्टफुल रेडी होता है, आई एम गोइंग टू चेंज इट फ्रॉम द बैकएंड। ओके स्टार्टिंग ओके के टाइम पे 15 20 50 100 जितनी भी वीएम्स आप बनाना चाहते हैं, उन सभी इट का विल बी द सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। इक्वल होगा। यस, but once you ready with the virtual machine, then you can change it. After that you can add modify the configuration। ये ब्रेथ फर्स्ट में भी होता है ना सर? कहीं पे ही कर सकते हैं, पोल्ड हो या ओके पर्सनल हो, दोनों भी केस में ये एप्लीकेबल। हम्म। बट अभी इसमें पर्सनल में ब्रेथ फर्स्ट में क्या डिफरेंस है सर? चेंजिंग दी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, पर्सनल के केस में ना वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग थिंग। यहाँ पे ब्रीथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा ना, बिकॉज इन यू आर प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड मशीन। आप हाँ यहाँ पे एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, तो ब्रीथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट का कोई इसका मतलब ही नहीं है। खाली डेडिकेटेड मिशन के लिए पर्सनल है ना सर? सॉरी, नहीं, ये पर्सनल है। इट इज ओनली फॉर टू डेडिकेटेड मिशंस टू द यूजर्स, बस उतना ही है ना सर? हाँ। ओके नहीं, आपने ये कॉन्फ़िगरेशन बोले ना, तो वही तो मैं सोच रहा हूँ इसमें भी कर सकते हैं ना बोल के। ठीक है सर। यस सर। डन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट back to the portal and let's try to understand about the concept। यस सर। Another options which are available on portal, ये हुआ भी अपने पास host pool का। I'm just going to open the host pool and it gives us a lots of option, like it give you the basic information in the demo, like number of virtual machine, connected virtual machine, not connected virtual machine। it give you the details, active session, disconnected session and pending session। अभी गुड हमने सर। क्या किया, अपने इन्वायरमेंट में केवल एक ही वीएम को क्रिएट किया और 3 डिफरेंट यूजर्स को असाइन कर रखा है। इफ यू हाँ प्रोसीड हाँ एंड क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन, 4 वर्चुअल मशीन तैयार किए और 6 या 8 हमने यूजर्स उसमें असाइन कर दिए, सेशन असाइन कर दिए कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सेशन हम इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। सो उस केस में हाँ इट गिव यू द मोर क्लियरिटी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आवर होस्ट पूल, right? So we'll हाँ create it, but abhi to we are just started our journey with AVD host pool, so AVD environment तो धीरे धीरे चीजों को मैनेज करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक द आरडीपी। हमने इसमें एक यूजर ऐड किया था, इज दैट करेक्ट? यस सर, टेलनेट यूजर को ऐड किए थे। टेलनेट यूजर, टेलनेट यूजर, हाँ टेलनेट या जीसीपी, टेलनेट यूजर यूज किया था। So टेलनेट I'm यूजर। going to access our virtual machine using the telnet user, not using single virtual machine। I'm going to add one more user and we'll try to access through the multiple users at the same time, because you know that कि हमने जो virtual machine establish कर रखा है ना, उसमें 3 different session को assign कर रखा है, means at the जी सर। same time 3 users are able to access your virtual machine। So I'm going to take the RDP through Telnet, through another users that we created, like AWS भी हमने तैयार किया था। So we'll जी सर, add our एमजीसीबी। user through the AWS user, या फिर जो other users हैं उनसे भी हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी सर। Okay, we successfully connected with the help of Telnet user back to the user profile, means the AVD host pool. Go to the application group, demo, and go to the assignments। I wanted to assign more user। अभी हमने केवल Telnet को ऐड किया था। Let me add one more user। I think AWS user we also created and Tata user, yes, AWS के साथ साथ हमने Tata user भी create किया था। Select both the user and let's try to connect with the help of AWS and with the help of Tata as well।
Is that okay? हाँ सर. Back to our another browser. I'm going to connect through the different browser, and this time wanted to access with the help of data at teachmecloud.net, right? Or dot in. हाँ सर. Dot in. Hmm. Number of sessions हमने access किया through this is through Telnet and this one from our Tata user. Is that correct? Number of session we decided Yes up sir. to 3. It means that with the help of AWS भी हम इसको access कर सकते हैं. But just wanted to see the impact. Back to the AVD Page and host pool, right? हाँ सर. Back to the हाँ AVD sir. host pool and click host pool, open demo host pool, and it will give you the details. How many Two act. sessions are to active? Two. Sir. Yes sir. Your machine is connected. I'm going to add with AWS as well. So let me open incognito. Now I'm trying to access with the help of AWS. Okay, so we successfully connected with the entire virtual machines that we created, entire session. Yes.
Yes, sir. or it will give you the information about number of session active, application group 1 है, and no disconnected and no connection pending. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Now let's talk more about it कि और इसमें क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं. Back to the session host, and it will provide you the information about number of instances, number of virtual machines that you created. Yes. अनफॉर्चुनेटली अपने केस में हमने क्या कर रखा है, अपने केस में हमने केवल एक की ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, सी, एंड विच इज जी, रनिंग सर. प्रॉपरली. एक ही वर्चुअल मशीन Right. क्रिएट कर रखा है और वो प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, राइट. हाँ, सर. सो द एंटायर आरडीपी दैट यू टेक इन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेशन एक ही के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, ठीक है. जो 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 बर्डन है वो एक ही यूजर के ऊपर हम पूरे के पूरे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अपने पास एक ही है. अगर यहाँ पे इंस्टेंसेस ज्यादा होते तो ये क्या करता, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को डिफरेंट डिफरेंट यूजर, 2 करके, 3 करके, 4 करके ये यूजर्स को डिवाइड करता जाता, और जिससे क्या होता आपके होस्ट पूल के ऊपर उतना बर्डन ना पड़ता जितना नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप कनेक्ट करेंगे. Come again, ठीक sir. है, यहाँ तक. Come again. If we have more than one virtual machine and you are trying through multiple client computer, you are trying to connect from multiple users at a same time, right? So Uh-huh. it will not, it will divide the workload. ये क्या करता, workload को भी हमारे divide कर देता. वर्कलोड को कैसे डिवाइड करेगा सर? एक ही मिशन है ना सर? नहीं नहीं नहीं, if we have more than one virtual machine ना, हाँ हाँ हाँ. अगर अपने यस सर. पास यस. नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स ज्यादा होती, अभी तो एक ही है तो कोई वर्कलोड डिवाइड नहीं होगा इसमें, ठीक है. जी सर. अगर जी सर. नंबर ऑफ यस. वर्चुअल मशीन्स ज्यादा होती तो डेफिनेटली इट विल डिवाइड आवर वर्कलोड, ये हमारे वर्कलोड को क्या करते, चेंज कर देती, और थोड़ा सा जो यूसेज है वो अलग हो जाता. जी सर. फाइन. यस सर. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन. बेसिक जो ऑप्शन है उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. We'll talk about the networking and all the terms. And now, do you want to make any changes with hardware? You just need to click here. It will redirect you on the properties of our virtual machine. ठीक है ना, ये हमारी Okay. virtual machines की properties पे पहुंचा देगा. And हाँ सर. this is the health check status, domain joining, trust, all the things are running properly. We don't have a issue with the virtual machine. यस सर. Multiple options are available. Remove session host, start session host, restart session host and stop session host. इस वर्चुअल जी. मशीन में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, राइट, आप स्टॉप करना चाहते हैं या फिर होस्ट से रिमूव करना चाहते हैं, if you are to remove it from the host, then you can हाँ. perform this particular task. बट अगर आपको हार्डवेयर चेंजेस करना है तो यू नीड टू ओपन द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टी. दिस इज द VMs प्रॉपर्टीज. अब अभी हमने एक VM क्रिएट किया है विद 2 कोर ऑफ प्रोसेसर एंड आई थिंक 4 कोर ऑफ प्रोसेसर 8 GB रैम पे हमने इसको इस्टेब्लिश कर रखा है. इन केस ऑफ यू आर ट्राइंग टू चेंज 2 कोर प्रोसेसर 8 GB रैम, सॉरी, ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है. I wanted to replace the configuration, hardware configuration. Just need to Uh-huh. click on size पे click करेंगे and it will redirect you on the page of configuration. Yes Currently sir. we are using कौन सा वाला, अभी हमारे पास जो B2. configuration है, this one, नहीं, RAM, I think ये वाला है. हाँ सर. 2 core processor, 8 GB of RAM. You want हाँ to सर. make a changes with hardware, like you wanted to make it for 16 GB RAM or सर इसमें 14 बेस्ट GB of कौन सा RAM. रहेगा सर? सर इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा? बिकॉज वी आर असाइनिंग D8S अंडरस्कोर V3 दे रहे हैं. स्टिल पीपल आर फेसिंग चैलेंजेस. उसका नीचे का सर 32 GB का रैम एंड वो दे रहे हैं.
इससे बेस्ट कुछ है सर? नहीं, फिर आपको सीरीज बदलनी पड़ेगी। सीरीज में फिर सीरीज का 64 मतलब गीग क्या है रैम सर? पे। उसमें भी वही एक्चुअली है ना दे सर? नहीं, they decided the configuration and categorized in different सीरीज। इन्होंने एक ओके प्रॉपर लिस्ट बना रखी है हार्डवेयर की, जिसमें से प्रॉपर एक सीरीज बना रखी है अपने हार्डवेयर को। और एक सीरीज में मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सीरीज आपकी बहुत अच्छा जीपीयू प्रोवाइड करता है, कुछ सीरीज आपको बहुत अच्छा सीपीयू प्रोवाइड करता है, राइट। कुछ अगर जो ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, गेमिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, गेम डिजाइन डेवलपर जो हैं, वो उनको हाई जीपीयू चाहिए। तो उनके लिए एक सेपरेट सीरीज बना रखी है। जिनको नॉर्मल यूसेज है वर्चुअल मशीन का, हाई यूसेज है, मीन्स हाई कॉन्फ़िगरेशन के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग है, राइट। तो सीरीज का आप बोल सकते हैं इट्स अ कॉमन सीरीज दैट हेल्प अस टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन अकॉर्डिंग टू द पर्पज दैट यू आर ट्राइंग टू यूज फॉर द वीएम। ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, पिंग फेल आएगा, उसमें डाउन टाइम आएगा जब आप हार्डवेयर को चेंज करोगे। तो जितने भी सेशन रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पेंडिंग फॉर्मेट में चले जाएंगे। अगर आपने रनिंग इन्वायरमेंट में कर दिया तो जो सेशन अभी हमें दिखाई पड़ रहे थे कनेक्टेड, वो पेंडिंग हो जाएंगे। जैसे ही आपकी मशीन 3 से 4 मिनट के अंदर ऑन होगी, वो पेंडिंग सेशन फिर से एक्टिव सेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। मीन्स क्लाइंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट को बस वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा वेट। सेशन रीएक्टिव नहीं हो पाता। गॉट इट सर। डिस्क को तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना सर? हार्ड डिस्क का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। हार्ड डिस्क के केस में क्या होता है ना, कि हार्ड डिस्क आप रनिंग में भी चेंज कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके सर। सो इसमें साइजेस में द बेस्ट साइज कौन सा है सर, वेयर यूजर्स कैन नॉट फील एनी चैलेंजेस? तो हाँ, एज फिर आई सेड उसके आई। अकॉर्डिंग कॉस्ट भी हमें देखनी पड़ेगी। 64 गिग रैम पे हम दे सकते हैं। यहाँ पे डी सीरीज में एक मशीन थी जिसमें 64 गिग रैम दिखा रहा था, दिस वन। हाँ हाँ। 16 Core processor and 64 gig of RAM. This is the ओके configuration. सर। नहीं, ये D8 DS V5 में भी 32 रैम है, ऊपर का सीरीज में भी 32 रैम, डिफरेंस क्या है सर इसमें? इसमें आपको ये देखना है IOPS। ओके। ठीक है ऊपर ना, भी सेम है IOP ना सर? नहीं, उससे ऊपर अलग है। यहाँ पे जो आपका iOS है, एक IOPS जा रहा है 12,800 का, दूसरा जा रहा है हाँ अपने पास 25,000, राइट, ट्वेंटी फाइव हाँ हाँ। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का। 600। तो ये IOPS के ऊपर भी डिपेंड करता है। IOPS जो है हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड को डिसाइड करता है। IOPS will decide the hard disk speed. हार्ड डिस्क की स्पीड, द डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड। आप देखिए यहाँ पे भी वो 32 GB का है, ट्वेल्व थाउजेंड हाँ हाँ। एट हंड्रेड का, है ना। 16 गिग है, 6400 ओनली का। हाँ सर। 4 गिग है केवल 36 700 का। सो जो ये आईओप्स है ना, ये कहीं ज्यादा मैटर करता है अपने हार्डवेयर को, डेटा ट्रांजेक्शन को। ओके। ओके सर। जो हार्डवेयर को, जो स्पीड है हमारे पूरे सिस्टम की, जो स्पीड है हमारे पूरे सिस्टम की, वो किसी एक हार्डवेयर से मिलकर नहीं क्रिएट होती। उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट राइट यूजर, you have to select right hard disk, right CPU and right RAM। सर अगर आप तीनों देखें को तो इधर IOPS अगर 6400 6400 6400 ही है सर IOPS, बट इन हम्म इफ यू कैन लुक इनटू द RAM 16 GB 16 GB एंड 8 GB,
हाँ, सीपीयू तो पूरा 4 कोर ही है, तो इसका आईओ सेम है सर, ये डिफरेंस है रैम का। रैम का अलग है, सीपीयू का अलग है। Because हाँ what सर। happens जब अब let's take a normal example, right? मार्केट में यू नो दैट आई एम लाइक हमें एक लैपटॉप परचेज करना है, ठीक है ना? तो हाँ देखो, हाँ। दो तरीके के कस्टमर होते हैं मार्केट में जब भी लैपटॉप परचेजिंग करते हैं। दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर बजट के अकॉर्डिंग चीजें परचेज करता है, ठीक है ना? लाइक आई वांटेड टू हाँ बाय वन लैपटॉप, बट मेरे पास सर। कंडीशन ये है कि मैं 35,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इतने में अगर मिलता है तो आई एम गोइंग टू बाय एनी लैपटॉप। जी सर। और दूसरा दूसरा बंदा माइंड सेटअप करके गया है कि नहीं, मुझे ना 32 GB का लैपटॉप चाहिए। तो उसके माइंड में क्या है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पहले से डिसाइड कर रखा है। ही already decided that the laptop that I'm going to purchase must be with minimum 32 gig RAM, Core i7 processor and 1 TB of SSD। तो वो जी सर। उसने कॉस्ट नहीं मेंशन की ना। उसी तरीके से जब एज्योर पोर्टल के ऊपर जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं ना, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडर, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज्योर कि वो हर एक कस्टमर को ध्यान में रख के सेटअप को बनाए, राइट? हाँ सर। हाँ सर। सो यू कैन से दैट समटाइम, यस, हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ये इसमें जो हार्डवेयर प्राइसिंग का जो इम्पैक्ट है ना, प्राइसिंग का जो इम्पैक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन भी बढ़ता है। हो सकता है कि कुछ मशीन्स आपको यूएस लोकेशन में महंगी पड़े, वही मशीन्स आपके इंडिया लोकेशन में थोड़ा सा सस्ती पड़ जाए। लाइक दैट इट मे बी पॉसिबल है, ओके। ठीक है? बट उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत नॉर्मल सा इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ, ये आईओप्स वगैरह का जो पंगा है ना, आईओप्स वगैरह का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आईओप्स में क्या होता है कि नॉट ओनली द आईओप्स, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आईओप्स है उसका भी कॉस्टिंग से कहीं ना कहीं मेंशन है, ओके सर। ठीक है? सो दिस इज द वे दैट वी कैन यूज टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। And let me check the another options which are available in AVD hostful, ठीक है? And multiple options are available, but before that let me help you to understand more about it। अभी हमने होस्टफुल को क्रिएट किया एंड होस्टफुल के अंदर की चीजें देखी। Let's talk about the application group। So what do you think about the application group, the basic understanding of application group? सर जितना तक मेरे को मालूम है, एप्लीकेशन ग्रुप में क्लिक करने के बाद ये आएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देन वी विल गो टू दी असाइनमेंट पेज में, जाके उधर असाइन करेंगे। वही जितना तक मेरे को वही मालूम है सर। Acha, you mean to say that with the help of application group we can assign the session for our user? यस सर। हमने अपने यूजर्स को सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है। So basically the application group you can attach with your existing host pool, not only to take the session RDP, it is also applicable to access your virtual machines, not entire virtual machine, like you wanted to access only the application। आप किसी को RDP ऑथराइज नहीं करना चाहते, ठीक है? You don't want to authorize the RDP for any existing users। 3 यूजर आपने डिसाइड किया है, 3 सेशन आपने डिसाइड किया है, एंड you don't want to access your users through, you don't want to authorize any user to take the RDP of virtual machine। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें एप्लीकेशन को एक्सेस कराना चाहते हैं। Then again application group come into the picture। So let me create one group, और इस ग्रुप का हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को शेयर करने के लिए। इज दैट ओके? कैन यू हियर मी? Sorry sir, I am talking on mute. Can you please can tell me the application group, sir? Why we use application group?
इन केस ऑफ एवीडी इन्वायरमेंट, जब भी हम एवीडी का सेटअप तैयार करते हैं ना, whenever we establish our AVD host pool, Uh-huh. we have a two different way to access our virtual machine. Oh, This is the okay. VM that we establish, ठीक है? And in the Uh-huh. VM we have already attached our application group. Mm-hmm. मतलब AVD host pool के साथ application group को हमने पहले से अटैच कर रखा है. And now जी इस application group में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे. ओके First one is access remote, ठीक है? And the second one is access application. The meaning of access remote, आपका यूजर जो है ना वो आपके पूरे पूरे वर्चुअल मशीन्स का आरडीपी एक्सेस कर पाएगा. इट ओके मीन्स दैट इस मशीन में जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह है वो फुल एक्सेस रहेगा इसको. फुल एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उन सभी का एक्सेस वो यूजर आसानी से कर सकता है. एंड ओके नाउ अबाउट द एक्सेस एप्लीकेशन ओनली. अब आपने जो only वर्चुअल मशीन set of only set हाँ of applications which we assign that only can be accessed by that particular is that हाँ correct जी, sir एग्जैक्टली. MS पेंट हो गया, वर्ड हो गया, VLC प्लेयर हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है? या जो भी सॉफ्टवेयर आपने इस मशीन में इंस्टॉल कर रखे हैं, कैलकुलेटर हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर. got it sir इससे by using any access applications any cost reduce होगा सर अपन को नो, इट इज applicable फॉर द सिक्योरिटी only for the security okay एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ CPU एंड RAM. ठीक है? जब आप केवल एप्लीकेशन शेयर करते हैं, आरडीपी शेयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेसर और रैम को भी कम ही लेस ही कंज्यूम करता है. okay so this ठीक है? access application consume less of हार्डवेयर, optimizations of RAM hardware हाँ, and the लेस software लेस हार्डवेयर. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं ना कहीं इसका जो यूसेज है ये सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है. okay So let me yes sir create got it got it sir back to the setup and let me create one AVD host pool. एक नया ग्रुप तैयार करते हैं हम. क्लिक एप्लीकेशन ग्रुप एंड क्लिक क्रिएट, और यहाँ पे हम सेम जो AVD होस्ट पूल हमने बनाया उसी AVD होस्ट पूल को क्रिएट कर देते हैं. uh-huh. Then remote application, type the name of application, demo hyphen app. No need to do anything. Click next. यहाँ पे application assignment होगा, means how many applications you want to assign. How we can do that? We just need to click on add application and start menu. What you want to access? हम यहाँ पे नोटपैड एक्सेस कर देते हैं एक, और let me add another applications, Internet Explorer. तो ये जो एप्लीकेशन ग्रुप है जो हम्म, जो भी एप्लीकेशंस अपन ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी एन आवर लोकल सिस्टम सर हाँ, जो मेन मशीन आपने आरडीपी बनाई है, जिसका आरडीपी आपने एक्सेस किया, तो उसी कंप्यूटर का है.
मतलब समझा नहीं सर। जो टेलनेट यूजर उसमें लॉग इन करके आप ये तो दिस इज दी योर लोकल मिशन है ना सर? लोकल मशीन इन द सेंस लाइक जैसा अपन का सिस्टम वर्चुअल का नहीं, प्रेजेंट सिस्टम विच यू आर एक्सेसिंग नाउ। जो आरडीपी हमने एक्सेस किया है ना, जो आरडीपी हमने अभी एक्सेस किया है, वर्चुअल मशीन जो हमने आरडीपी में एक्सेस किया है, आई डोंट वांट हाँ टू एक्सेस अवर कंप्यूटर, आई डोंट वांट टू एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन थ्रू आरडीपी. I wanted to share the same application. Yes, I wanted to share only application, not the RDP. हम उन जो यूजर्स अभी टेलनेट और AWS को हमने असाइन किया है ना, अभी तो हमने पूरी मशीन प्रोवाइड कर रखी है, हाँ राइट, सर। बट वी हाँ वांटेड टू असाइन ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन. हम यहाँ पे केवल उनको एप्लीकेशन एक्सेस कराना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ तक अभी क्लियर हो जाएगा. ये आरडीपी आ रहा है. अभी किससे एक्सेस किया हमने? आरडीपी टेलनेट से एक्सेस किया है. जी सर। हाँ The another user that we access with the help of AWS, and one more RDP AWS we access with the help of Tata. तो टाटा अभी ये राइट सर। तीनों यूजर हमने किससे एक्सेस किया है? Using the same Active Directory user, the यस सर। Azure the AD that we use to create these users, हमने यस Active सर। Directory का इस्तेमाल किया है इन सभी यूजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए. बट नाउ जी सर। I don't want to assign the entire RDP, क्योंकि उनसे जब आप RDP एक्सेस करेंगे तो इट मींस दैट इनको सारी की सारी सर्विसेज मिल जाएगी. हाँ And हाँ they are able to access all the services. I wanted to share only selected application. RDP भी नहीं देना चाहते इनको. तो हम क्या हाँ करेंगे? हाँ अभी हम ये एप्लीकेशन ग्रुप क्रिएट करेंगे. लाइक द एप्लीकेशन ग्रुप दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. इस पैनल पे जाएंगे, नेक्स्ट असाइनमेंट पे जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू असाइन द सेम यूजर्स. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईटी से जो यूजर्स आ रहे हैं उन सभी यूजर्स को ये असाइन करना चाहते हैं. ओके टेलनेट हो गया, एंड टाटा हो गया, और AWS हो गया. सो वी सक्सेसफुली असाइन ऑल द यूजर्स. तीनों यूजर्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया. नेक्स्ट वर्क स्पेस, जो अपने पास वर्क स्पेस है वो वर्क स्पेस नया इसमें एग्जिस्टिंग वाला वर्क स्पेस इसमें मिल जाएगा. रिव्यू एंड क्रिएट. Okay, application group created successfully. What I'm going to do, just going to access our virtual machines again. Let me साइन sign आउट out करके करना and है, रिस्टार्ट करे तो बस होगा। हाँ. अभी ये स्किप सेटअप खाली 15 दिन ही ना सर, उसके बाद क्या करेंगे सर?
इसके बाद हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा ये। We आप do not देखिए have यहाँ पे, any option. नो वी डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि ये बैकएंड से ही चेंज किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज नहीं किया सर, है, ऑथराइज किया I had a connect with MS Office team, so है। we can go to the uh, what we call इसमें जा सकते सर, इंट्रा आईडी में जाके सिक्योरिटीज में we can disable that sir. But only ओके, thing तो is हम्म हाँ बताइए सर. अभी रिसेंटली उन्होंने ऐड किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ वर्क फ्रॉम होम इन केस ऑफ कोविड दे डिड इट मैंडेटरी, तो अभी इसमें चेंजेस किए हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी में। ओके, बट हमारे को ना सर पूरा यूज बोले तो सेल्फ सर्विस का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा सर उन लोगों को. अब उनको अच्छा, एस एस टिकट पी आर, रेस करेंगे. एस एस पी एस आर एस नहीं पी काम आर करेगा राइट सर. उसमें। हाँ यस सर, हम्म एस एस पी आर को नन में लगा दिए तो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पूछेगा नहीं आप. हम्म तो वर्क स्पेस में यही ऐसा ही दिखा देगा एप्लीकेशंस. और हाँ, सो यहाँ पे अपने पास क्या है, द आरडीपी पहले से हमने डिसाइड किया था, वेन एवर यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वी हैव, तो यू जस्ट नीड हम्म. टू क्लिक, एंड आपको अगेन यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, सो आरडीपी अब की ये जगह पे आरडीपी. आप हाँ हाँ. आरडीपी की जगह पे आप केवल एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। आरडीपी को निकाल रख से कैन वी रिमूव द आरडीपी फ्रॉम देयर सर? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा वो, बिकॉज वी डोंट वांट टू assign both the things at the same time. You राइट सर. must need to back to the AVD host pool, go to the assignments, application group, demo application group, and go to the assignment. यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए यूजर्स को। अच्छा, यूजर्स को यहाँ से निकाल देना है. अच्छा, हाँ, we just need to remove the users from RDP, because whenever नॉट we द apply, एप्लीकेशन, हाँ, नॉट द एप्लीकेशन ग्रुप. करेक्ट। हम्म. अब आप ओके. यहाँ पे दूसरे यूजर्स को अगर आप आरडीपी लेना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू साइन आउट एंड देन साइन इन अगेन, देन मैम. तो आप तो एस एस पी आर एक्टिव कर ले सकते हैं ना सर नन में, सो यू विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ हाँ, पॉपअप. राइट 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 राइट, इट विल टेक तो टाइम, निकाले. अभी तो दिखा रहा है, बट इट विल टेक टाइम टू रिमूव इट। अच्छा, ओके. It's just to optimize the RAM and keep the better performance of the system, na sir? करेक्ट, And security purpose as well. यस। I think we are getting the access of our virtual machines from the means cache memory, so that's why, but थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। जी sir. Okay, no worries sir. Okay, so this is about the two different point हमने यहाँ पे डिस्कस किया, like
about the application groups and the part of our what we can say that मतलब एवीडी। सब part of our AVD host pool के बारे में and हाँ सर। we have a multiple option because next we'll talk about the golden image, how we can create a golden image and associate with not pooled. Next हम personal host pool तैयार करेंगे and we'll create more than one virtual machine and we have option to assign the user for particular VM. अभी जैसे हमने यहाँ पे ओके। यूजर असाइन किया था राइट, यूजर्स को हाँ हमने क्या सर। किया, डायरेक्टली हमने होस्ट पूल में असाइन कर दिया कि ठीक है दिस इज द होस्ट पूल एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट पूल, करेक्ट। जी सर। यस सर। हमने कोई अगर अपने पास मोर देन वन वर्चुअल मशीन होती या पर्सनल वर्चुअल मशीन होती तो उस केस में क्या होता कि यू कैन, अब जैसे दो यूजर है, टेलनेट को आप दूसरी वीएम वीएम जीरो देना चाहते हैं एंड एडब्ल्यूएस को वीएम वन देना चाहते हैं, हाँ हाँ। जी सर, गॉट इट। हाँ। ठीक है। तो हम्म। उस केस में जब आप इंडिविजुअल यूजर को असाइन करना चाहते हैं, एडब्ल्यूएस को आपने VM2 दे दिया, टेलनेट को VM1 दे दिया, सो ये ऑप्शन आपका हम्म। तभी होगा जब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे ओके। when we have a more than one virtual machine, plus when we have more than one virtual machine, and it is also applicable for, it is also applicable for a kind of पर्सनल होस्ट पूल। जब हम पर्सनल होस्ट पूल तैयार करेंगे तो उस केस में ये हमारे लिए काम आएगा, ठीक है। ओके। ओके सर, आपने बोला है वो सिस्टम 5 बंदों में एक बंदे का यूजर फेसिंग द चैलेंजेस, तो जब अपन क्या चेक करना है कि सर वी नीड टू टेक द आरडीपी एंड देन। You need to take the RDP and also activate the entire services that you are using on daily basis। अब जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं VM के अंदर ना, वो टास्क आप स्टार्ट कर दिया काम करना, और फिर बैकएंड में जाकर के आप अपने इन्वायरमेंट का CPU और रैम का यूटिलाइजेशन चेक करेंगे। सीपीयू एंड रैम का यूटिलाइजेशन चेक करना। हाँ, CPU कंजप्शन चेक करेंगे कि कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, ओके। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स की रिक्वायरमेंट है कितने यूजर्स के साथ। जी सर। जी सर। यस सर, गॉट इट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट वी कैन से गोल्डन इमेज का पार्ट सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने FS लॉजिक्स का, कैसे प्रोफाइल डेटा हम सेव करते हैं, और फिर नहीं पहले पर्सनल का होगा फिर गोल्डन इमेज वगैरह का हम बात करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। ठीक है सर, ये स्टोरेज अकाउंट्स का कब बात करेंगे सर? FS लॉजिक्स